सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 18 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे ऐसे कोई विशेष खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। पहला आर्टिकल इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके है, जो कि अब फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच रहा है और जिसकी रिलीज़ को एग्री कर लिया गया दोनों तरफ की पार्टीज़ ने। यही इस आर्टिकल में बताया है। मैटर ऑफ स्किल्स, जो हाल ही में यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिपोर्ट जारी करी गई है। क्यूएस वही संस्था है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज इंडेक्स भी जारी करती है। The inaugural QS World Future Skills Index has ranked India's job market as second only to the US in terms of readiness to recruit for advanced digital and green technologies. But the report also frames the country's challenges on the knowledge economy front. Despite its near perfect score, 99.1% in opportunities opened up by new technologies. In other words, while job advertisements analyzed by QS show that Indian companies are seeking competencies in advanced technologies, the country's education system has not kept pace with these demands. मतलब ये यहाँ पे पता लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत में ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ, मगर जो हमारा एजुकेशन फाउंडेशन है, स्किल सिस्टम है, वो अभी भी एट पार नहीं है जो डिमांड है। A score of 15% in the skill fit parameter, the lowest among 30 countries, points to a deficit long underlined by industry bodies. As the QS report also points out, employers across India are highlighting a critical gap in the workforce ability to meet demands. और 59.1% ही है स्किल फिट में परसेंटेज मिली हमको, जो कि न्यूनतम है। लोएस्ट अमंग 30 कंट्रीज है, लोएस्ट अमंग 30 कंट्रीज है। The All India Council for Technical Education (AICTE) data also illustrates the system's failure to embrace advanced knowledge. The fact that nearly 2 out of 3 positions, postgraduate seats in India engineering colleges were vacant last year, shows that MTech course provide little value addition. The AICTE's criteria for setting up engineering college largely pertain to a infrastructure such as classrooms, lab and libraries, human resources such as teacher student ratio. तमाम बातें हैं। मतलब ये ओवरऑल एमटेक की सीटें बता रहे हैं खाली जा रही हैं लास्ट ईयर। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि लोग को इंटरेस्ट नहीं है, तो वैल्यूडेशन उनको आर नहीं मिल रहा है। पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम द लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D पे रिसर्च कम हो रही है एट 6.6%। India's R&D expenditure to GDP is very low compared to the global average of 1.79%. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ ग्लोबल एवरेज 1.79% का है R&D पे इन्वेस्टमेंट, वहीं भारत में 0.65% पे रुका हुआ है, जो कि बहुत कम है। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। यहाँ पे अभी बजट आने वाला है तो उसको लेके बात करी गई, बहुत बहुत सारी बातें करी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ तो आपके काम का तभी है जब बजट आ जाएगा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली काम में आएगा। अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं पड़ने का। अगर लैंसेट की रिपोर्ट असल में हाल ही में आई थी बीएमआई को लेके, बॉडी मास इंडेक्स को लेके, उस आर्टिकल में कवर करा है। A report published in Lancet Diabetic and Endocrinology has called for an overhaul of our understanding of obesity, citing an over-reliance on BMI, which has had the peculiar effect of leading to both underdiagnosis and overdiagnosis of the condition. This is because BMI does not provide a reliable picture of health. Neither is it a direct measure of fat, nor does it give accurate information about how fat is distributed in an individual's body. तो लांसर की रिपोर्ट में कहा गया जो बॉडी मास इंडेक्स को हम बेस लेके चल रहे हैं ओबेसिटी की मेजरमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, तो वो गलत है। Rethinking the over-reliance on BMI is long overdue, not least because of how it has been misused to reduce conversations about health to mere number on a scale. With Lancet report lines, in fact, is how little we understand about the combination of bones, flesh, and blood, that is the mortal coil, and by extension, how limited our understanding is about the actual state of our bodies.
Space may be final frontier, but original unconquered frontier remains in the human body. This is something that medical practitioners who rely on a combination of scientific evidence, experience, patient history, and gut feeling, the clinical judgment, in other words, understand and acknowledge. आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे फिर से स्पैटेक्स को कवर करा है। अगली खबर यहाँ पे तालिबान को लेकर है, भारत और तालिबान के रिलेशंस को लेके, या पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। और पैसन टफ टॉक ऑन रशियन ऑयल को लेके, कि हमने कल वाला आर्टिकल में पढ़ा था ना, रशिया इंडिया के बीच में ऑयल का जो रिश्ता है उस पर ग्रहण यूएसए लगाने वाला है, उसे महंगा कर देगा। तो हम जो रिफाइंड ऑयल सेल कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो हमें कॉस्टली पड़ेगा, उतना मार्जिन नहीं बचेगा। स्पैटिक मिशन के बारे में पहले भी कई बार बताया है, और देखते हैं उसके अलावा यहाँ पे जो बात हो रही है कैसे इनसैट सैटेलाइट वगैरह भी हमारे काम में आएंगे। सॉरी, यहाँ पे वो नहीं, वो वाला आर्टिकल है, वाई स्पेस वेदर इज की टू सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट। अब इसमें बताने का प्रयास करा है कि स्पेस में क्या माहौल होता है, कैसा वेदर है जो कि स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट्स पे असर डालता है, प्रभावित करता है। स्पेस वेदर होता क्या है? द सन्स हॉट आउट एटमॉस्फेयर नोन एज सोलर कोरोना is constantly spewing electrical charge gases and particles into space. The so-called solar winds travel at speed of millions of kilometers per hour and reach the farthest part of the solar system, creating space weather. The frequency and intensity of solar winds fluctuates based on the solar activity cycle, which refers to a periodic 11 years change in the sun's activity, measured on the basis of sunspots observed. Sunspots are indicators of solar activity. The more the activity, the more hazardous the space weather. The ongoing solar cycle entered its maximum phase in November 2023, and we are currently in the midst of an extended period of heightened solar activity. इसीलिए हमें पिछली महीने साल का जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, कि वो एक सोलर साइकिल कंप्लीट हुई थी। तो यहीं पर हमने प्रिसीजन डॉकिंग करी है वैसे वेदर में। Enhancing high energy radiation associated with strong flares from the sun can blind sensors and interfere with the electronic computer systems. Magnetic storms from the sun, known as coronal mass ejections, or very high speed of solar wind streams, can disturb the space environment, resulting in loss of communication and positional errors. अब देखिए, जो सोलर एक्टिविटी इतनी हाई होती है तो कोरोनल मास इंजेक्शंस होते हैं, मैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस क्रिएट होते हैं, जैसे सेंसर्स वगैरह भी, और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना कुछ गड़बड़ी हो सकती है उनमें। ऐसे माहौल में भी हमने डॉकिंग कर पाए हैं। बाकी हमने इसके बारे में कल बताया था पूरा डिटेल में, क्या है, क्या स्पैटेक्स मिशन है, और कैसे ये हमारे स्पेस स्टेशन में बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट रहने वाला है। आगे कोई विशेष खबर नहीं है। इंडियन ऑटो एक्सपो हुआ था, उसके बारे में है। कोनेरू हम्पी जी को लेकर कोनेरू हम्पी जी को लेकर आर्टिकल है एक। इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं। आज के क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और जानेंगे क्या चल रहा है देश दुनिया में। फिलहाल आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू।